Good afternoon, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, continuing to the series of APPSC previous year economics क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे लास्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें वी डिस्कस्ड many questions. So, in this session, we will also discuss 2025 questions. So let's get started with the question number 1. ठीक है, give me a second. So our first question is, which of the following is not a report published by World Economic Forum? एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म रिपोर्ट, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट? कौन कौन सा है इसमें जो पब्लिश नहीं किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा? तो कौन सा है पहला? एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट. यस, दिस इज published by World Economic Forum. Global Gender Gap Report, this is also published by World Economic Forum. And Global Travel Tourism Report, this is also published by World Economic Forum. But the Human Development Index report is not published by World Economic Forum, rather United Nation Development Program, that is UNDP. So यही पूछ रहा है कि कौन सा जो है नहीं पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी? ठीक है. तो अगर इफ यू फोकस ऑन our early phase of development policy, because if you know कि at the onset of independence, India encounter a lot of unemployment, poverty, so illiteracy, these things were very much prevalent at the onset of independence. हमारे पास there was no much resources that we can support our population. So that is why initially when India got independent, तो अर्ली फेज में यू विल सी कि प्लानिंग कमीशन वॉज देयर, है ना. तो प्लानिंग वॉज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट. ठीक है. कोऑपरेटिव फार्मिंग, yes, this was also the components of early phases of India's policy, development policy. Land reform, yes, this was also. But the option that is B, liberalization was not the early phase of India's development policy, but it is the लेटर फेज ऑफ, मतलब बाद में लिबरलाइजेशन, जब 1991 का जो रिफॉर्म आया LPG, ठीक है, LPG reform, that is liberalization, privatization and globalization. In those in those policy, after that policy, we've opened our economy, we've opened our borders, so that जो बाहर की कंपनियां हैं they can invest in us. ठीक है. we can do export, we can do export import things. ठीक है. तो उससे जाकर के जो हमारा लेटर डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ वो आफ्टर 1991 के जो LPG का रिफॉर्म है उसके बाद. तो लिबरलाइजेशन वॉज नॉट द अर्ली फेजेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी, रादर इट वॉज द लेटर डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट किसान विकास पत्र is a deposit scheme in post offices which accepts a minimum amount of dash in a year. The maximum amount which can be deposited is 1000 rupees minimum, maximum 10 lakh. Option B, 1000 rupees minimum, maximum 5 lakh, and 10,000 rupees minimum or 10 lakh maximum, 1000 rupees minimum, अनलिमिटेड मैक्सिमम. सी, आपका जो किसान विकास पत्र है दैट इज द स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया, जहां पे यू हैव टू एटलीस्ट मिनिमम 1,000 रुपीज यू हैव टू डिपॉजिट एंड मैक्सिमम इट इज अप टू यू कि दैट आप कितना जो है डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब कि अनलिमिटेड। गेटिंग इट? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज वेरी फैक्चुअल। यूपीआई स्टैंड फॉर क्या है? यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंडिया, यूनिफाइड पेमेंट्स ऑफ इंडिया। दो बार ये रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट ऑन इंटरेस्ट। सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Which of the following organizations has played an important role in improving the payment settlement network in India and has also played an important role in the introduction of RuPay cards? ठीक है, इंप्रूविंग द पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क की बात करी जा रही है एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रुपे कार्ड्स। कौन था ये ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड, UIDAI, या फिर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। करेक्ट ऑप्शन इज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है दैट improved or improving the payment settlement network as well as introduced RuPay cards. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द next question, which of the following statisticians is well known for his work associated with the second 5-year plan? ठीक है, so I've told you कि planning was the अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। तो ये जो है कौन से स्टैटिशियंस हैं जो जिसके वर्क पे ये सेकेंड ईयर 5-ईयर प्लान जो है बेस्ड है? DT लकड़ावाला कमेटी, या फिर DT लकड़ावाला, सुखमोय चक्रवर्ती, PC महानलोबिस, या फिर PR ब्रह्मानंद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो आपका सेकेंड 5-ईयर प्लान था दैट वाज बेस्ड ऑन महानलोबिस फॉर्मूला। ठीक है, महानलोबिस फॉर्मूला। सो दैट इज व्हाई दिस PC महालनोबिस इज द करेक्ट आंसर। C. Next question is, which indicator is widely used to measure income inequality? कौन कौन सा है? पियर्सन कोफिशिएंट, या फिर गिनी कोफिशिएंट, या फिर स्वाज कोफिशिएंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो गिनी कोफिशिएंट है दैट शोज इनकम इन इक्वालिटी। और ये इनकम इन इक्वालिटी कैसा है? क्वांटिटेटिव। मीनिंग यू कैन मेजर द इनइक्वालिटी इन क्वांटिटी। ठीक है, अगर एंड इट इज रेंजेस बिटवीन 0 to 1। 0 is perfect equality and this is perfect inequality. ठीक है, so this is there, perfect equality and perfect inequality, right? At the same time, Gini coefficient, and there is a other that is Lorentz curve. Lorentz curve जो है that also shows the आपका that also measure income in equality। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है that is something like this 45 का जो लाइन है दैट इज लाइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, एंड दिस कर्व शोज इनइक्वालिटी मीनिंग ये कर्व जितना ज्यादा बेंड होगा, ठीक है, जितना ज्यादा बेंड होगा इन इक्वालिटी परसिस्ट दैट मच, उतना ज्यादा है इन इक्वालिटी आपका होगा इन इक्वालिटी। ठीक है,
तो लॉरेंज कर्व जो है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, इनकम इनइक्वालिटी. बट जो गिनी कोफिशिएंट है, दैट गिनी कोफिशिएंट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनकम inequality, and that is ranges between 0 to 1. 0 where shows perfect equality and 1 shows that perfect inequality. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्लान्स टू इशू sovereign green bonds to raise money for green infrastructure projects. Consider the following statements about India's sovereign green bond. Statement number 1 says that the funds raised will be issued to finance public projects that lower the economy's carbon intensity. Yes, ये sovereign green bond का मतलब क्या है? जो आपका this sovereign green bond है, ठीक है, दिस ग्रीन बॉन्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2022-23 के बजट में. ठीक है, एंड द एम द पर्पस ऑफ दिस द एम एंड द पर्पस ऑफ दिस बॉन्ड वाज टू generate the capital for what purpose? For green infrastructure project, for green infrastructure project. ठीक है, so it was when it was introduced 2022-2023 के बजट में, and इसका aim was what? Aim was कि to align it with India's ambition to become a carbon net emission by 2070. ठीक है, this is the part of India's strategy to achieve net zero emission by 2070. So statement number 3, green bonds are part of India's strategy to achieve net zero emission by 2070. This statement is true. India issued at its first sovereign green bond in 2023. This statement is also true, but only private investors can subscribe to green bonds. This only, ये जो है again high flown words, it is not only for private investor, right, but for also किसके लिए? public investor. So that is why statement number 4 is आपका incorrect. और इसमें से आपको पूछ रहा है कि which of the above statement are correct. तो कौन सा होगा? 1, this is also true. The fund raised will be used to finance public projects that lower the economy's carbon intensity. Yes, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Option number B जो है that is the correct answer. ठीक है. Now, जो next question है, which one of the following statements describes the tariff in the context of international trade? It is a tax on imports into a country. It is a tax imposed by a country on goods crossing its border. It is a quantitative restriction on trade goods. It is a reciprocal tax. Understand it. ठीक है, इसका जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड की. जो टैरिफ है कि वाई टैरिफ इज बीइंग इम्पोज्ड, बिकॉज सपोज कि यूएसए इज इंपोर्टिंग अ बर्गर from India, and right now $1 is equal to 80 rupees. $1 is equal to कितना? 80 rupees. And in United States of America, this burger is available at the rate of $1. But this same burger in India is available at the rate of, say for example, what? At the rate of 40 rupees. तो इस केस में what is beneficial for United States of American citizens के लिए कि they can import the burger because in $1 they will get the same 2 burgers. ठीक है, 2 बर्गर मिलेगा. लेकिन अगर आप देखोगे, अगर वो अमेरिका में ही प्रोड्यूस कर रहा है तो या फिर खरीद रहा है तो they will have to
पे $1, मतलब उसको एक ही बर्गर मिलेगा। और इंडिया से अगर वो ले रहा है तो इंडिया से जो है उसे 2 बर्गर मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इट? तो जो इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस है इन द फॉरेन मार्केट, दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे क्या है, दैट इज हाई। अब व्हाट इज देयर, बिकॉज इंडिया कैन एक्सपोर्ट, व्हेन इंडिया कैन एक्सपोर्ट, तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी चीपर इन द यूएस मार्केट। सो दैट इज वाई टू मेक द फॉरेन प्रोडक्ट्स, टू मेक द फॉरेन प्रोडक्ट्स, जो गवर्नमेंट है दे इम्पोज टैरिफ, दे इम्पोज टैरिफ ऑन द प्रोडक्ट या ऑन द प्रोडक्ट्स विच इज इंपोर्टेड। इस केस में क्या है, यूएसए क्या कर रहा है, बर्गर जो है इंपोर्ट कर रहा है, कहां से, इंडिया से। तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे यू विल सी कि टैरिफ इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही टैरिफ इंपोर्ट होगा तो जो इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन यूएस मार्केट है वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। और जो इंडियन प्रोडक्ट है, इस केस में अगर जो बर्गर है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, यूएसए में बढ़ जाएगा। इस केस को आप रिवर्स करके इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो कि इंडिया में भी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट विल इम्पोज टैरिफ for what purpose, to save the domestic market या फिर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए, इट इज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इनटू अ कंट्री। यस, दिस स्टेटमेंट जो है आपका वो है क्या, करेक्ट। एक तरीके का ये टैक्स है ऑन इंपोर्टेड आइटम, सो दैट जो चीप प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मान लो कि अगर चाइना के केस में और इंडिया के केस में आप देखोगे कि चाइनीज गुड्स आर चीपर इन इंडिया, एंड बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरिंग हब, उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कॉस्ट बेनिफिट है वो क्या है, वो ज़्यादा है, बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। हमारे यहाँ वी आर नॉट पार विद द इन टेक्नोलॉजी, सो दैट इज़ वाई सेम प्रोडक्ट अगर हम इंडिया में बनाते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर चीपर प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है, जिसका जो मार्केट है वो क्या हो जाएगा, डिवेस्टेड, ठीक है। सो दैट इज क्या कि इट इज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इनटू अ कंट्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब टैरिफ, तो दिस इज है। एंड रिसेंट पास्ट में अभी भी आप देख रहे हो कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अंडर ट्रम्प्स गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग 25% of tariff, 50% of tariff on India's products. So this is very much what important. Next question, what is meant by repo rate of the RBI? देखो रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है, दे लेंड द मनी टू द बैंक्स, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज आरबीआई से, ठीक है, फॉर ओवरनाइट पीरियड, ओवरनाइट या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है, 1 days 2 days एटसेट्रा के लिए। सो इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स ऑफर लोन, नहीं, कॉमर्शियल बैंक ऑफर नहीं करता है लोन को, कॉमर्शियल बैंक इधर बोरो द लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, ठीक है, या फिर आरबीआई विल लेंड द मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। सो इट this statement 1 is incorrect. It is the percentage of total deposits of commercial bank that is kept in cash. See, जो टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक है एंड उसका सर्टेन परसेंटेज दैट इज पार्क विद आरबीआई, दैट इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। Understanding? It is the rate of interest at which commercial banks borrow money from the RBI for short-term needs. Yes, this statement is true because it is the rate of interest at which commercial bank borrow money from RBI. RBI से पैसा लेगी, RBI से
पैसा लेगी कौन? बैंक, ठीक है, लोन के फॉर्म में। इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक लेंड टू ईच अदर। नो, ये वो नहीं है। दिस स्टेटमेंट नंबर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, the demarcation of any region as defense industrial corridor, that is DIC, is to achieve self reliance in defense manufacturing. Two DICs exist in India and the third one has been negotiated by state with the central government in recent years. Choose the correct combination of states UTs on the basis of above statement. ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात। सो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु had already existed defense industrial corridor, and number third DIC, that is defense industrial corridor, is under discussion with the Assam government. So option number B जो है आपका, that is उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु and Assam are correct. Next, which of the following are constituted by the President of India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें से कौन कौन सा जो है बनाया गया है? तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यस, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग, नो, नीति आयोग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडिया, बट इट इज द एग्जाम्पल और इट इज द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ 2015, एंड इन 2015 ये जो है द नीति आयोग केम इनटू पिक्चर, रिप्लेसिंग द प्री एग्जिस्टेड प्लानिंग कमीशन। किसको? प्लानिंग कमीशन को खत्म करके और ये लाया गया था। द कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यस, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and obviously the Union Public Service Commission, this is also constituted by President of India. Select the correct answer using the codes given below. कौन सा होगा? 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. Option C is the correct answer, 1, 3 and 4. ठीक है। Which of the following is not published by UNDP? कौन सा जो है इसमें से UNDP के द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय UNDP, ठीक है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। ये दो इंस्टीट्यूशन है that published the global hunger index. The gender inequality index is published by UNDP, that is correct, and the global multi-dimensional poverty index, this is by UNDP plus what? Plus OPHI, Oxford Poverty and ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। सो जो आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दैट इज पब्लिश्ड बाय UNDP प्लस OPHI, दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है दैट इज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि नॉट पब्लिश्ड बाय UNDP, ठीक है। कौन सा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट answer. Moving to the next question, which says that social development index, क्या? Social development index is a composite index which considers important dimensions
of social development such as demographic parameters, health indicators, educational attainment, basic amenities and economic deprivation, social deprivation parameters. See, टॉकिंग अबाउट सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की बात कब होगी? ठीक है, सोशल डेवलपमेंट अगर हम ऑप्शन नंबर वो 1 को डिस्कस करें तो डेमोग्राफिक पैरामीटर्स, ठीक है. सी इन इंडिया इफ यू सी कि देयर इज डेमोग्राफी, यू नो, वेरियस डेमोग्राफिक बेनिफिट्स. लाइक व्हाट? क्योंकि जो वर्किंग ग्रुप है दैट इज बिटवीन 16 to 64, इस एज के ग्रुप्स आर वेरी मच, मतलब पॉपुलेशन इज सो हाई. ठीक है, अगर आप देखोगे से फॉर कि सदर्न स्टेट, जो सदर्न स्टेट है लाइक केरला, ठीक है, तमिलनाडु या फिर ये कर्नाटका आपका, उसके बाद जो नदर्न स्टेट है दैट इज यूपी, बिहार. ठीक है, सो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, दीज स्टेट हैज, ये जो है दीज स्टेट्स हैज टैप देयर उसका जो डेमोग्राफिक बेनिफिट्स है. क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास जॉब्स हैं. बट जो नदर्न स्टेट है यूपी, बिहार, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्ड. अब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्ड का मतलब व्हाट? कि अगर आप अपने यूथ को क्या नहीं दे रहे हो, जॉब नहीं दे रहे हो, उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, तो दैट जो ये जो यूथ है अल्टीमेटली क्या करेगा, आगे चल के क्या करने वाला है? इसके पास कोई जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये अनएम्प्लॉय हैं, तो कभी चोरी करेंगे, कभी डकैती करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. टेररिज्म एक्टिविटी विल इंक्रीज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, तो ये जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यू कैन से डेमोग्राफिक का जो बेनिफिट्स है, इफ़ यू आर नॉट टैपिंग देम, दैट डेमोग्राफिक जो पॉपुलेशन है आपका, जो वर्किंग क्लास है, वो जो है आपका, इट बिकम्स द डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब. एक तरीके से एक पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब होगा, क्योंकि आप इसको संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि यू आर नॉट टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ इट. इसके पास पोटेंशियल है, आपको इसको क्या करना है? वर्क देना है, जॉब देना है. ठीक है, सो दैट यू कैन टैप दोज एनर्जी. ठीक है, तो यस, डेमोग्राफिक जो पैरामीटर्स है दैट इज कंसीडर्ड वाइल सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स के जब हम इसको वो देखते हैं, इसको फॉर्म करते हैं उस टाइम पे. हेल्थ इंडिकेटर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका लेबर फोर्स जो है, अगर आपका लेबर फोर्स इज नॉट हेल्दी, ठीक है, is if they are not healthy they will not perform at their workplace. If they are not working if they are not performing well at their workplace, तो आपका होगा क्या? इकोनॉमी जो है वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितना ज़्यादा ग्रो करना चाहिए. ठीक है, तो हेल्थ इंडिकेटर, दोस्तों गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स. नॉट ओनली दिस, एजुकेशनल अटेनमेंट. अगर एजुकेशन नहीं है दैट मीन्स व्हाट? कि इफ योर लेबर फोर्स इज नॉट स्किल्ड इनफ, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट तो है, जॉब्स आर अवेलेबल, ठीक है, जॉब्स आर अवेलेबल, बट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल दे आर नॉट एबल टू grab the jobs. So again, educational attainment is one of the parameters for social development index. Getting it? Next जो statement है that is basic amenities and economic deprivation. Obvious सी बात है कि जो basic amenities है that should be provided by government while taking consideration this social development index. ठीक है, and social deprivation parameters. So yes, all of these are 4 statements are correct. Select the correct answer using the codes given below. कौन सा होगा? 1, 2, 3 and 4. All of them are correct. ठीक है, moving to the next question which says that which of the following is a graphical representation of income distribution used to calculate the Gini coefficient. Right, in the earlier question we've discussed that कि जो आपका गिनी कोफिशियंट है दैट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ व्हाट? इनकम इनइक्वालिटी. बट एट द सेम टाइम जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज डन बाय लॉरेंज कर्व. दिस
45 डिग्री का जो एंगल वाला लाइन है, दैट इज लाइन ऑफ इक्वालिटी, राइट, दिस इज लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड दिस कर्व इज लॉरेंज कर्व। ये डिपेंड करता है कि अगर ये कर्व अगर जितना ज़्यादा बेंड है, इस दोनों के बीच का जो एरिया, इफ दे आर मोर, मीनिंग कि मोर इनकम इन इक्वालिटी परसिस्ट, ठीक है, तो दैट इज लॉरेंज कर्व। परेटो चार्ट इज अबाउट व्हाट? परेटो चार्ट जो है दैट इज 80-20 रूल्स, मीनिंग व्हाट कि इफ यू आर working on 20% of marketing strategy, this 20% of marketing strategy will give you 80% का benefit। इसको आप बहुत सारे काम पे जो है अप्लाई कर सकते हो, इसको यू कैन अप्लाई इन योर डेली लाइफ एज वेल, ठीक है, कि अगर आप मैनेजमेंट पे 20% वर्क करते हो तो दैट मैनेजमेंट विल गिव यू 80% का आउटकम्स, ठीक है। सो दैट इज अबाउट जो आपका क्या है, परेटो चार्ट। उसके बाद यहाँ पे एक कुजनेट कर्व्स के बारे में बात करी जा रही है। तो कुजनेट कर्व्स क्या है कि कुजनेट कर्व्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू इनकम इनइक्वालिटी, बट इट सेज दैट कि इनिशियली व्हेन देयर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जब इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उस टाइम पे यू विल सी कि इनइक्वालिटी परसिस्ट, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस इनइक्वालिटी विल रिड्यूस, ठीक है, विल रिड्यूस। सो दैट इज कुजनेट कर्व्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वुड बी द क्या करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a fiscal instrument, ठीक है। अब say for example if the country's economy are in the recession or there is a inflation, in that circumstances either the government of India और जो सेंट्रल बैंक है आपका कंट्री का दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बोथ कैन कम इनटू पिक्चर एंड दे कैन यूज देयर ओन टूल्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल यूज देयर टूल्स जो कि क्या है, टैक्स, उसके बाद जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, सब्सिडी एटसेट्रा एटसेट्रा। सी क्या होगा अगर सपोज कि देयर इज अ रिसेशन इन द इकोनॉमी, रिसेशन है, तो अब रिसेशन है मतलब क्या कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ रेट है ना, ये सब चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलिंग। तो अंडर दैट सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम इनटू पिक्चर एंड दे विल डिक्रीज द टैक्स एंड दे विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, ठीक है, सब्सिडी बढ़ा देगी ये, है ना। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पंप इन द मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट, मनी सर्कुलेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, मार्केट में बढ़ जाएगा। सो दीज आर द टूल्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द टाइम ऑफ रिसेशन। और इसका उल्टा अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो टैक्स को क्या करेगी गवर्नमेंट, बढ़ा देगी, एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, घटा देगी, है ना। तो दीज थिंग्स विल बी देयर। आरबीआई विल ऑल्सो कम विद देयर ओन टूल्स, जो कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है ना, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो दीज आर द टूल्स, ठीक है, दैट इज यूज्ड बाय आरबीआई इन द टाइम ऑफ रिसेशन, इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। सो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिस्कल इंस्ट्रूमेंट। तो जो कैश रिजर्व रेशियो है दैट इज नॉट अ फिस्कल इंस्ट्रूमेंट, रादर दे आर द मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, यस दिस इज द टैक्स, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा ये, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट। इनकम टैक्स, यस। सब्सिडी, यस। सो आपका आंसर जो होगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, नॉट अ फिस्कल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो। गेटिंग इट? Okay, moving to the next question. Our next question says that which of the following conduct annual survey of industries? Again factual in nature, the Reserve Bank of India, या फिर the Department of Economic Affairs, Labor Bureau, या फिर the Ministry of Statistics and Program Implementation. So obviously MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation is what they conduct the annual survey of industries. Getting it? Moving to the next, an increase in the tax to GDP ratio of a country indicates with
विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जर फिस्कल एबिलिटी, ठीक है। स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सी, किसकी बात की जा रही है? टैक्स टू जीडीपी की बात करी जा रही है, ठीक है। सपोज कि अभी ये 10% है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग 10% ऑफ टैक्सेस, जो भी जीडीपी है उसमें से, है ना। और अगर मान लेते हैं कि इफ दिस टैक्स टू जीडीपी increase and it becomes, say for example hypothetically saying 15%, 15% हो जाता है ना, तो 10% से क्या हुआ 15%। नाउ गवर्नमेंट इज एबल टू कलेक्ट 5% मोर टैक्स, मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास 5% एक्स्ट्रा पैसा अब आएगा। मतलब क्या कि जो फिस्कल एबिलिटी है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है खर्चा करने के लिए, वो अब क्या है, पहले 10% था, अब 5% ज़्यादा हो गया, क्योंकि 15% हो गया। गेटिंग इट? मतलब क्या कि फिजिकल एबिलिटी, मतलब उस 5% से गवर्नमेंट कैन फर्दर यूज ऑफ दैट फंड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो रोड बना सकता है ना, वो ब्रिजेस बना सकता है, वो बिल्डिंग्स बना सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर से जहाँ पे जॉब जो है क्रिएट होता है, जहाँ पे एसेट्स गवर्नमेंट का क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यस, लार्जर फिस्कल एबिलिटी, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो किसी कंट्री का बढ़ता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि लार्जर फिस्कल एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सी, नो, दिस इज इनकरेक्ट। हाउ? अगर मान लो कि अगर टैक्स जो है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन इज इंप्रूविंग, मतलब इंक्रीजिंग, दैट मीन्स व्हाट, कि वो खर्च तो करेगा, बट सपोज इफ दे वांट टू आई मीन कंस्ट्रक्ट द रोड, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बट दैट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि जो कोई इंजीनियर है वहाँ पे, तो एवरी वन कैन नॉट बी इंजीनियर। जिसके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्ड है, जिसके पास स्किल सेट है, दे कैन बी देयर, ठीक है। तो सबको क्या हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं आ सकता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है तो यू विल गेट, ठीक है, अच्छा खासा इनकम। अगर आपके पास स्किल अच्छा नहीं है तो एट द सेम टाइम आपका जो इनकम है दैट विल बी नॉट एट द सेम जिसके पास अच्छा स्किल है। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट वन। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन सा सही हो जाएगा? वन ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Moving to the next question, again this is the again factual question. If you are following the newspaper, you will encounter with these two committees report, that is the Gadgil committee report and Kasturi Rangan committee report, are related to which of the following? Ganga action plan, interlinking of Indian rivers, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, प्लानिंग ऑफ इको जोन्स ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा? दीज टू कमिटीज रिपोर्ट्स आर रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, which organization department is the custodian of foreign exchange reserve in India? Again factual in nature, Exim Bank, Reserve Bank of India, या फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, या फिर नीति आयोग, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन, so which of the following is not a dimension of social progress इंडेक्स? क्या क्या है? बेसिक ह्यूमन नीड्स, यस, बेसिक ह्यूमन नीड्स जो भी हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ व्हाट? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, यस, दिस इज ऑल्सो। अपॉर्चुनिटी, यस, बट पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज नॉट द डायमेंशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सो यही आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सो ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय स्कीम? उदय स्कीम, सी,
providing technical and financial assistance to startups. Actually, this Uday scheme was introduced in 2015 for किसके लिए? डिस्कॉम्स के लिए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज के लिए, द कंपनी हु डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स. ठीक है, तो कौन कौन सा होगा? ये पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के लिए है, इसमें से आपको सर्च करना पड़ेगा. रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, नो. प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री, नो. Replacing the coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind, and tidal power plant over a period of time, no. Providing a financial turnaround and revival of power distribution companies. So, this is a financial assistance for DISCOM, distributive company. So, option number D जो है आपका, that is the correct answer. ठीक है. Next question is, what is the time period of 16th Finance Commission of India? Again, this is the current affair based questions. If you are following this, which is chaired by Dr. Arvind Pangadia. First option is 1st of April 2025 to 31st of March 2030. Second option is 1st April 2026 to 31st of March 2031. And third option जो है आपका, that is 1st January 2025 to 31st December 2030. 1st January 2026 to 31st of December 2031. अगेन वेरी फैक्चुअल इन नेचर. ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, दैट इज 1st of April 2026 टू 31st of March 2030 वॉज द टाइम. ठीक है, फॉर 16th फाइनेंस कमीशन विच इज चेयर्ड बाय डॉक्टर अरविंद पनगड़िया. ठीक है, सो these were the questions of economy APPSC previous year paper that we've discussed. Thank you for watching. We will definitely meet in the next lecture with some more questions. Thank you then.